Hello everyone. So today we'll start with the next topic, which is the general expression for probability. In the last class we have derived the expression for the number of phase space cells in lying in the momentum interval p and p plus dp. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये रिलेशन डिराइव किया था जीपी डीपी इज इक्वल टू वी इंटू 4 पाई पी स्क्वायर डीपी अपॉन एच नॉट क्यूब, which is basically where GPDP is representing the number of phase space cells lying in the momentum interval P and P plus DP. ठीक है, this relation is very important from your examinations point of view also, and also to understand statistical physics. Now next we'll derive the general expression for probability. This is also important from your examinations point of view. Here how we'll derive the expression for probability. देखो सबसे पहले हम system क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक ऐसा system ले रहे हैं. Let's say we have a box that is distributed in k compartments. We have a box that is divided into k compartments and we have to distribute n particles in those k compartments. ठीक है, प्रोवाइडेड यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो हमारे के कंपार्टमेंट्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. जो हमारे कंपार्टमेंट्स हैं अगर वो सेम साइज के नहीं है, डिफरेंट साइज के हैं, उस केस में क्या एक्सप्रेशन होगी प्रोबेबिलिटी की ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n पार्टिकल्स इन k compartments of a box, provided that the k compartments are of different sizes, let's say A1, A2, A3 up to AK as shown in the figure. Now this is the figure. Let's say we have a box which is denoted by here the square box, and that is divided into large number of compartments. How many compartments? K compartments, and the size of all the k compartments are different. A1 जो है, let's say this is the area of the first compartment. A2 is the area of the second compartment. Similarly, we have A3. A3 is the area of the third compartment, and so on. AK is representing the area of the kth compartment. ठीक है, तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी टू डिस्ट्रीब्यूट n पार्टिकल्स इन दोस k कंपार्टमेंट्स ऑफ अ बॉक्स प्रोवाइडेड ऑल द कंपार्टमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. ठीक है, नाउ लेट्स से n1 हमारा क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कंपार्टमेंट 1, then n2 is the number of particles in the second compartment, n3 is the number of particles in the third compartment, so on. Nk is representing the number of particles in the kth compartment, such that n1 plus n2 plus n3 up to nk is equal to n. That means total number of particles जो है वो हमारे constant है, और इनमें जो हम particles ले रहे हैं, let's say these particles are balls. So we have n balls and we have to distribute them into the k compartments of different sizes. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, let us throw n distinguishable particles, say balls, into the box in a completely random manner so that no part of the box or no compartment is favored. So the distribution is defined by stating that the number of balls in each cell as n1, n2, nk like this, such that total number of balls is fixed. ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. First paragraph में you have to write that we have to find the total probability in which we have to distribute n particles in the k compartments of a box, and all the k compartments there are different sizes A1, A2, A3 up to AK, and n1 is the number of particles or the number of balls in the first compartment, n2 the number of particles in the second compartment, nk is the number of particles or balls in the kth compartment, such that the total number of balls will remain constant, such that n1 plus n2 plus n3 up to nk is equal to m. ठीक है, I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. देखो जब हमने पहले पढ़ा था ऐसा केस, जब हमें बॉल्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था इन डिफरेंट बॉक्सेस, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई थी, जब हमने हेड्स और टेल्स का भी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी थी NCR इंटू 1/2 raised to power n. हमारी ये प्रोबेबिलिटी आई थी, आई होप ये सबको याद है, हमारी आई थी NCR इंटू 1/2 raised to power n. NCR हमारा क्या होता है, NCR रिप्रेजेंट करता है
number of microstates in a particular macrostate which is also known as thermodynamic probability. तो इसका मतलब जो total probability है हमारी वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो वो डिपेंड कर रही है एनसीआर पे, एक वो डिपेंड कर रही है 1/2n पे। मतलब एक तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है, कि this is the number of ways the particles may be rearranged and still leave the distribution same, that is the total number of balls in each cell left as before। इसका मतलब क्या है, एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। हमारी जो मैक्रो स्टेट है, लेट्स से हमारी ये मैक्रो स्टेट है कि n1 पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, n2 सेकंड में, सो ऑन n के kth कंपार्टमेंट में है। अब ये जो n1 पार्टिकल्स है फर्स्ट कंपार्टमेंट में, इसको हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, और जो n2 है उनको हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, तो ये हमारी होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो इसमें ज्यादा लोड मत लो, बस इतना ध्यान दो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी विच इज एनसीआर, दूसरा किस पे डिपेंड करती है प्रायर प्रोबेबिलिटी विच इज कैपिटल जी। thermodynamic probability को total thermodynamic probability of the system is denoted by capital W and total prior probability is denoted by capital G। प्रायर प्रोबेबिलिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, देखो यहाँ 1/2 हमारा क्या है, अगर हम हेड्स या टेल्स ले रहे हैं, अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हमें ये पता है जब हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ भी आए प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। सो हियर 1/2 इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर जो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बॉक्स हैं वो सेम साइज के नहीं है, जो हमारे कंपार्टमेंट्स हैं वो सेम साइज के नहीं है, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब पार्टिकल को डालने की प्रोबेबिलिटी इन सारे कंपार्टमेंट्स में वो इक्वल नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। और वो क्या होगी ये हम अब देखेंगे। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि n1 पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, n2 सेकंड में है, n3 थर्ड में है, n के kth कंपार्टमेंट में। इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इस डिस्ट्रीब्यूशन की विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, नेक्स्ट इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। यहाँ पर जो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट होगी, और वो क्या होगी ये हम अब निकालेंगे। तो लेट्स से वी आर कंसीडरिंग द ith कंपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे हमने एक कंपार्टमेंट चूज कर लिया, लेट्स से वो हमारा ith कंपार्टमेंट है, ith कंपार्टमेंट है, तो लेट्स से एरिया जो है इस ith कंपार्टमेंट का वो हो गया AI, ठीक है, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस ith कंपार्टमेंट में वो कितने हो जाएंगे Ni। तो वी आर चूजिंग a one compartment out of the k compartments. Let's say that compartment is the ith compartment, so the area of the ith compartment is denoted by AI, ठीक है। Let's say the total area of this entire box is capital A, total area capital A है, हर एक बॉक्स का जो एरिया है वो डिफरेंट है, लेट्स से ith कंपार्टमेंट का जो एरिया है वो AI है, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने ith कंपार्टमेंट में डाले हैं लेट्स से वो Ni है, ठीक है। अब हमें प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक पार्टिकल की टू फॉल इन दी सर्टेन सेल, लेट्स से ith सेल। तो लेट्स से प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल को ith कंपार्टमेंट या सेल में डालने की, लेट इट बी Gi। देखो जब अगर हम ऐसे कहते हैं ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास एक बॉक्स है उसको दो कंपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया, दोनों का एरिया सेम है, तो किसी भी बॉक्स में पार्टिकल के जाने की जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 1/2 है, ठीक है। क्यों, लेट्स से इस पूरे बॉक्स का एरिया हमारा 100 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, इसको हमने दो बॉक्स में डिवाइड किया ऑफ इक्वल साइज ऑफ इक्वल एरिया, तो इस बॉक्स का एरिया क्या हो गया 50 यूनिट स्क्वायर, और इस बॉक्स का एरिया क्या हो गया 50 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बॉक्स में पार्टिकल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 50/100 विच इज 1/2, ठीक है। इस पर्टिकुलर बॉक्स में पार्टिकल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 50/100 विच इज 1/2,
2। तो हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी? एरिया इस पर्टिकुलर सेल का या कंपार्टमेंट का डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो GI प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकल फॉलिंग इन द ith cell will be given by the ratio of the size of that cell, that is AI, to the size of the entire box, which is capital A। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ith सेल में डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? AI अपॉन कैपिटल A, where AI is the area, or you can say that size of that cell, and capital A is the size of the entire box, such that capital A is equal to A1 plus A2 plus A3 up to AK। वही हमने यहाँ पर इसी तरीके से हमारा पहले निकला था, तब एरिया जो है या जो साइज जो है सारे बॉक्स का सेम था, तो हमने दो ही बॉक्स है तो 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब ये हमने इसको यहाँ पे जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिखा इन दिस फॉर्म। तो इस तरीके से हम प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अगर हम किसी बॉक्स को इतने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करें कि सच दैट वो जो सारे कंपार्टमेंट्स हैं उनका साइज जो है जरूरी नहीं है सेम हो, इट कैन बी डिफरेंट। तो अगर साइज डिफरेंट है तो उस केस में किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को किसी भी पर्टिकुलर सेल में डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उस पर्टिकुलर सेल का एरिया divided by the area or the size of the entire box. So GI is equal to AI upon A, and we know that total probability should be 1. तो ith सेल में अगर डालने की probability GI है तो let's say फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल को डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी है G1, सेकेंड कंपार्टमेंट में पार्टिकल को डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी है G2, विच विल बी A2 अपॉन A, G3 हमारा हो गया A3 अपॉन A, GK हमारा हो गया AK अपॉन A। ठीक है, और ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है? इट शुड बी इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। सो it follows that sum of the prior probabilities of all the cells must be 1, because we already know that the total probability is 1. तो अब तक हमने क्या किया है मैं एक बार थोड़ा समराइज कर दूं। हम एक बॉक्स ले रहे हैं, उसको हमने डिवाइड किया k कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, हर एक कंपार्टमेंट जो है इट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। लेट्स से जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसका साइज A1 है, जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसका साइज A2 है, थर्ड कंपार्टमेंट का A3 है, सिमिलरली kth कंपार्टमेंट जो है उसका साइज AK है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स n है, जिनको हमें डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है जिनको हमें इन के कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो उसमें हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे हैं कि n1 नंबर ऑफ बॉल्स हमारी फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, n2 नंबर ऑफ बॉल्स हमारी सेकंड कंपार्टमेंट में है, n3 नंबर ऑफ बॉल्स हमारी थर्ड कंपार्टमेंट में है, सो ऑन हमारी n के नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो kth कंपार्टमेंट में है। ठीक है, सच दैट n1 plus n2 plus n3 so on up to nk is equal to n, where n is the total number of particles that we have to distribute in these k compartments। ठीक है, अब हमें ये पता है जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की, इट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। वन इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल W, अनदर वन इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल G। तो कैपिटल G निकालने से पहले हम एक पर्टिकुलर सेल कंसीडर करेंगे। लेट्स से वी आर कंसीडरिंग ith सेल। तो ith सेल में एक पार्टिकल को डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू उस पर्टिकुलर सेल का एरिया, लेट इट बी AI, डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द इंटायर बॉक्स, और वी कैन से GI इज इक्वल टू, और GI इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल AI divided by the size of the entire box, and we know that total probability should be equal to 1. So G1 plus G2 plus G3 up to GK will be equal to 1. G1 हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को डालने की इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट
which is having the size A1. तो G1 हमारा हो गया A1 अपॉन कैपिटल A, G2 हमारा हो गया A2 अपॉन कैपिटल A, सिमिलरली GK हमारा हो गया AK अपॉन कैपिटल A। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्या है देखो, ith सेल में एक पार्टिकल को डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी है GI, और हमें कितने पार्टिकल्स डालने हैं ith सेल में, हमें डालने हैं Ni पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट इवेंट, और यू कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक पार्टिकल को डालने की प्रोबेबिलिटी GI है, दो पार्टिकल्स को डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी GI इंटू GI, तीन पार्टिकल्स को डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी GI इंटू GI इंटू GI, दैट मीन GI रेज टू पावर 3, चार पार्टिकल्स को डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी GI रेज टू पावर 4, सिमिलरली Ni पार्टिकल्स को डालने की प्रोबेबिलिटी ith सेल में कितनी होगी GI रेज टू पावर Ni। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो। As the probability of a composite event is equal to the product of the probability of the individual and independent events, it follows that the probability that the particles fall simultaneously in the ith cell, दो पार्टिकल्स को ith सेल में डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी GI इंटू GI, दैट इज इक्वल टू GI स्क्वायर, और हमें कितने डालने हैं, हमें Ni पार्टिकल्स डालने हैं ith सेल में। So the prior probability that Ni particles fall simultaneously in the ith cell will be GI raised to power Ni। I hope ये सबको clear है। Ni particles को हमने ith सेल में डालना है, तो ith सेल में Ni particles को डालने की prior probability क्या होगी, एक पार्टिकल को डालने की GI है, so Ni particles को डालने की probability होगी GI raised to power Ni। सिमिलरली फर्स्ट कंपार्टमेंट, ठीक है, जिनमें हमें N1 पार्टिकल्स डालने हैं, तो G1 हमारा क्या हो, तो G1 हमारा क्या है, ये हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी है एक पार्टिकल को फर्स्ट कंपार्टमेंट में डालने की, तो N1 पार्टिकल्स को फर्स्ट कंपार्टमेंट में डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी G1 रेज टू पावर N1। सिमिलरली सेकंड कंपार्टमेंट में N2 पार्टिकल्स को डालने की टोटल प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी G2 रेज टू पावर N2, वेयर G2 हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी है एक पार्टिकल को सेकंड कंपार्टमेंट में डालने की, G2 इज इक्वल टू A2 अपॉन कैपिटल A। तो हमारी टोटल प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो टोटल प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना है, क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कि k सेल्स में n पार्टिकल्स को डालना है सच दैट N1, यहाँ N1 आएगा, इसको करेक्ट कर लो, सच दैट N1 पार्टिकल्स हमारे फर्स्ट सेल में आएंगे, N2 पार्टिकल्स सेकंड सेल में, N3 पार्टिकल्स थर्ड सेल में, एंड सो ऑन, Nk पार्टिकल्स kth सेल में। तो टोटल प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन की, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G, व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रायर प्रोबेबिलिटीज। ये क्या है, N1 पार्टिकल्स को फर्स्ट सेल में डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी G1 रेज टू पावर N1, ये हमारा क्या है N2 पार्टिकल्स को सेकंड सेल में डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी G2 रेज टू पावर N2, ये क्या है हमारा ith सेल में Ni पार्टिकल्स को डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये क्या है हमारा लास्ट क्या है kth सेल में Nk पार्टिकल्स को डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो वी आर सिंपली यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल G, व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रायर probabilities, that means G1 raised to power N1 into G2 raised to power N2 into G3 raised to power N3 so on into Gk raised to power Nk। तो हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल ली, अब हम क्या निकालेंगे, टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें कैपिटल G मिल गया इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का, कैपिटल W मिल गया, देन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल W इनटू कैपिटल G। तो अब हमें कैपिटल G मिल गया, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द thermodynamic probability of this distribution।
कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे एक तरीके से क्या निकाल रहे हैं, हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी थी शुरू में, we wish to find the most probable distribution of the balls among the compartments now। और जो most probable distribution ले रहे हैं हम, वो क्या ले रहे हैं कि n1 particles first compartment में है, n2 particles second compartment में है, so on kth nk particles जो है वो हमारे kth compartment या cell में present है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोवाइडेड जो हमारे ये जो के सेल्स हैं इन सबका साइज डिफरेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी होगी द प्रोडक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एंड the product of thermodynamic probability capital W of this distribution and the prior probability capital G of this distribution। तो prior probability capital G हमने निकाल लिया, this is given by this expression। I hope ये सबको clear है। capital W कैसे निकालेंगे, सबसे पहले N1 particles को first cell में डालने के कितने तरीके होंगे, आउट ऑफ टोटल n पार्टिकल्स। जो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, ठीक है, और द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, ठीक है। और बाय डेफिनेशन हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है बाय डेफिनेशन, दैट इज इक्वल टू NCR, ठीक है। NCR जो है उसको हम और क्या कहते हैं, NCR हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मैक्रो स्टेट and which is also known as number of microstates in a given macro state, which further represents कि हमारा किस तरीके से पार्टिकल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में। यहाँ पर हमारी मैक्रो स्टेट क्या है, N1 पार्टिकल्स पहले सेल में, N2 पार्टिकल्स सेकंड सेल में, Nk पार्टिकल्स kth सेल में। तो N1 पार्टिकल्स को फर्स्ट सेल में डालने का क्या तरीका होगा, NCN1 out of n particles, N1 particles are distributed in the first cell। So number of ways in which any N1 particles out of total of n particles may fall in first cell is NCN1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ही लगाते हैं ना। नेक्स्ट N2 पार्टिकल्स को अब हमें सेकेंड सेल में डालना है। N1 पार्टिकल्स को ऑलरेडी हम फर्स्ट सेल में डाल चुके हैं, तो अब हमारे पास कितने पार्टिकल्स बचे, N-N1। अब N-N1 पार्टिकल्स में से हमें N2 पार्टिकल्स को सेकेंड सेल में डालना है, तो उसका क्या वे होगा, N-N1 CN2। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे N-N1 है, जिसमें से हमने N2 पार्टिकल्स जो है उनको हमें डालना है in the second cell। So the number of ways of putting N2 particles out of the remaining N-N1 particles in the second cell will be N-N1 CN2। Similarly, अब हमारे पास कितने टोटल पार्टिकल्स बचे, N-N1 minus N2। अब ये जो हमारे रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं इनमें से N3 पार्टिकल्स को हमने थर्ड सेल में डाला। So what is the number of ways of putting N3 particles out of the remaining N-N1 minus N2 particles in the third cell will be N-N1 minus N2 CN3। और इसको हम खोल सकते हैं, NCN1 को हम कैसे लिख सकते हैं, N फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस N1 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिख सकते हैं, N minus N1 factorial divided by N2 factorial into N minus N1 minus N2 factorial, ठीक है। सिमिलरली इसको, तो इस तरीके से हम पार्टिकल्स को डाल सकते हैं। तो टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज ऑफ अरेंजिंग n particles in the k compartments
such that N1 particles fall in the first compartment, N2 particles in the second compartment, and so on, Nk particles in the kth compartment. This is also known as thermodynamic probability. और डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की हमें अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे अरेंज करने के, देखो N1 पार्टिकल्स को फर्स्ट कंपार्टमेंट में डालने के टोटल नंबर ऑफ वेज ये हैं, N2 पार्टिकल्स को सेकेंड कंपार्टमेंट में डालने के टोटल नंबर ऑफ वेज ये हैं, सिमिलरली N के पार्टिकल्स को kth कंपार्टमेंट में डालने के टोटल नंबर ऑफ वेज ये हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन अरेंजिंग N1 particles in first compartment, N2 particles in second compartment, and so on, Nk particles in kth compartment. इन सबका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होगी, W इंटू कैपिटल G। कैपिटल G हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज G1 raised to power N1 into G2 raised to power N2 so on into Gk raised to power Nk, where Gi हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ith कंपार्टमेंट में डालने की, विच इज इक्वल टू AI अपॉन कैपिटल A। तो दो पार्टिकल्स को डालने की प्रोबेबिलिटी होगी Gi स्क्वायर, सिमिलरली Ni पार्टिकल्स को डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी होगी Gi रेज़्ड टू पावर Ni। इसी तरीके से हमने हर एक कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स को डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो टोटल प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई कैपिटल G। अब हमने क्या किया, N पार्टिकल्स में से N1 पार्टिकल्स को फर्स्ट कंपार्टमेंट में डालने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, NC/N1। अब हमारे पास पार्टिकल्स बचे N-N1, तो N-N1 में से हमने N2 पार्टिकल्स को डाला इन द सेकंड कंपार्टमेंट, सो ऑन हमने, अब हमारे पास बचे N-N1 N2, उनमें से हमने N3 पार्टिकल्स को डाला थर्ड सेल में। So the number of ways of arranging N3 particles out of the remaining N-N1 N2 particles in the third cell will be this। kth सेल में डालने का क्या तरीका होगा, ये इस तरीके से ही निकाला है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n-n1, ये क्या है, अब हमारे पास पार्टिकल कितने बचे N-N1, तो N-N1 पार्टिकल्स में से हमने N2 पार्टिकल्स को सेकंड सेल में डाला, तो हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी एक वैल्यू जो है इसके न्यूमरेटर से कट रही है, सिमिलरली जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये थर्ड टर्म आएगी, इसका जो डिनोमिनेटर है ये कट रहा है इससे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक और टर्म होगी, वो क्या होगी, k-1th कंपार्टमेंट में हमें कितने पार्टिकल्स डालने हैं, Nk-1 पार्टिकल्स को हमें डालना है, ठीक है। तो वो हमारा उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें हमारे पास दो टर्म्स होंगी, एक टर्म क्या होगी हमारी Nk-1 फैक्टोरियल, ठीक है। एक टर्म हमारी क्या होगी, एक टर्म हमारी होगी जो इस टर्म का न्यूमरेटर है, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल आउट होगा इससे, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या, इसका न्यूमरेटर जो है वो कैंसिल आउट होगा इससे पहली वाली एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचा, सारे न्यूमरेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे इस न्यूमरेटर को छोड़ के, तो न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ बचा n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट टर्म में से बचा n1 फैक्टोरियल, सेकंड टर्म में से बचा n2 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म में से बचेगा n3 फैक्टोरियल, सिमिलरली यहाँ से बचेगा Nk-1 फैक्टोरियल, यहाँ से बचेगा Nk फैक्टोरियल। तो we can write capital W as n factorial upon n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial into n4 factorial so on up to Nk factorial, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर है कैसे आया, अगर क्लियर नहीं है तो इसको थोड़ा सा और आगे तक लिख लेना कि N3 पार्टिकल्स को थर्ड सेल में डालने का
कितने नंबर ऑफ वेज हैं वो लिख लेना, n4 को डालने का कितने नंबर ऑफ वेज है वो ले लेना, ठीक है। यहाँ पे nk-1 को डालने का कितने नंबर ऑफ वेज हैं वो लिख देना, फिर क्लियर हो जाएगा ये एक्सप्रेशन कैसे आई, ठीक है। अब इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन पाई ni। जैसे हम सम n1 प्लस n2 प्लस n3 को ऐड करते हैं ना, ऐसे समेशन ni, उसी तरीके से n1 इंटू n2 इंटू n3 प्रोडक्ट्स को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाई। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, हमने जब ये लिखा तो देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हुई थी, ये वाली टर्म जो है थर्ड टर्म के न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हुई थी, ठीक है। फिर फोर्थ टर्म का न्यूमरेटर जो है उसने थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर को कट किया था, तो हमारे पास यहाँ n फैक्टोरियल बचा था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सबके में से एक एक टर्म बची थी जो हमने यहाँ लिखी, प्लस लास्ट टर्म में ये वाली टर्म भी बची थी जो हमारी डिनोमिनेटर में आनी चाहिए थी पर हमने नहीं लिखी। क्यों? यहाँ पर देखो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, n माइनस कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचा, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस so on up to nk। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, सो n1 प्लस n2 प्लस n3 so on up to nk हमारा क्या है, n, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो n माइनस n इज 0 एंड 0 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 1, तो ये टर्म हमारी क्या हो गई 1, तो वी कैन डायरेक्टली राइट w एज दिस, ठीक है। तो हमारी ये वाली टर्म इस तरीके से गायब हुई। इसको we can write as n factorial upon pi ni where I is going from 1 to k। तो इसको हम लिख सकते हैं n1 factorial, बेटा इसको ठीक कर लेना सब, यहाँ ni factorial आएगा। So capital W is n factorial upon pi ni factorial where I is going from 1 to k। So pi ni factorial is used for product of terms just as the symbol summation is used for summation. So this expression is representing the thermodynamic probability of this distribution, that we have n1 particles in first cell, n2 particles in second cell, n3 particles in third cell, and then we have nk particles in kth cell. So what will be the total probability of the distribution? Total probability will be the product of prior probability capital G and the number of meaningful ways in which the particles in different cells may be exchanged. So यहाँ पे इन्होंने total probability को भी capital W से denote कर रखा है, तो इसमें confuse मत होना। तो capital W हमारा यहाँ कितना हो गया, कैपिटल W हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है विच इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ये इनटू द प्रायर प्रोबेबिलिटी ये, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू nk फैक्टोरियल, और प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी है, g1 रेज टू पावर n1 इंटू g2 रेज टू पावर n2 सो ऑन इंटू gk रेज टू पावर nk। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई। n फैक्टोरियल कांस्टेंट है, ये बाहर है, इनटू पाई, पाई हमारा कहां से कहां तक जा रहा है 1 से k तक, और हमारे पास है gi रेज टू पावर ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल, ठीक है। जब हम यहाँ पे i को खोल देंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 to k, तो हमारा क्या होगा n फैक्टोरियल इनटू, जब i 1 होगा ये होगा g1 रेज टू पावर n1 अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू g2 रेज टू पावर n2 अपॉन n2 फैक्टोरियल इंटू g3 रेज टू पावर n3 अपॉन n3 फैक्टोरियल इंटू सो ऑन इंटू gk रेज टू पावर nk अपॉन nk फैक्टोरियल। तो ये जो हमारी टर्म है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल expression for the probability
of distributing n particles in k compartments of a box provided that all the compartments are of different sizes. तो ये हमारी हुई फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो आई होप ये डेरिवेशन सबको क्लियर है. मैंने बहुत ही आराम से समझाया है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, n1 particles first cell में, n2 particles second cell में, nk particles third cell में. Let's say this distribution is the most probable distribution. इस distribution की हमें probability निकालनी है and we know that probability is equal to the product of thermodynamic probability and the prior probability. तो हमने पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाली कैपिटल G, फिर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाली कैपिटल W, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट किया एंड वी गॉट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, आई होप सबको ये डेरिवेशन क्लियर है. नेक्स्ट क्लास में we'll start with the condition of equilibrium between two systems in thermal contact, that is the beta parameter. So this we'll do in the next class.